Hello, friends. Welcome to you all in Zenith Educational Academy. So, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, we know very well that is determiner. इससे पहले डिटर्मिनर्स के बारे में डिस्कशन किया है, डेफिनिट डिटर्मिनर, इंडेफिनिट डिटर्मिनर, possessive determiner, and that is demonstrative determiner. But mostly focus on the definite and indefinite determiners. Yes, we discussed कि काउंटेबल नाउन्स के साथ कौन सी डिटर्मिनर आएगी, अनकाउंटेबल के साथ कौन सी आएगी, एब्स्ट्रैक्ट तो कौन सी आएगी, यस, एंड मटेरियल है, कलेक्टिव है, यस. सो वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वर्ड्स रिगार्डिंग टू द डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स. तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज हियर, मोर अबाउट द. तो द क्या है? ये डेफिनेट डिटर्मिनर है. समटाइम इट इज द, समटाइम इट इज दी. सो इसके बारे में डिस्कस करें कि इसके बारे में और क्या क्या हम जान सकते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट डिटर्मिनर और कहाँ कहाँ यूज हो सकती है. सपोज कम हियर, इट्स क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन. ये कह रहा है कि सिचुएशन से क्लियर है कि डेफिनिट आर्टिकल एक्चुअली किस लिए यूज होती है. सिचुएशन मीन्स वंस वी मीन, जैसे कल डिस्कस किया. इट मीन्स इन द प्रीवियस वीडियो डिस्कस्ड विद यू, इट मीन्स यू नो विच आई मीन. ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है. Yes, you know which I mean. A close phrase. It means speaker listener are more aware about the discussion. Yes, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है. Yes. So इस पर डिपेंड करता है सिचुएशन. But come to the point here. It means suppose examples क्या है? Could you close the door? There is a request. Could you close the door? आप देख सकते हैं door is there. और door के साथ हमने यूज किया है definite determiner article the. Yes, द जहां पे यूज हो रहा है, इट मींस द डोर. कल मैंने डिस्कस किया कि वी कैन यूज इन डेफिनिट आर्टिकल ए और एन विथ काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, क्योंकि वो प्लूरल के साथ यूज नहीं होती हैं. लेकिन डोर जो है यहाँ पे, ये भी एक काउंटेबल नाउन है, लेकिन हमने यहाँ पे यूज किया है द आर्टिकल. इसका मतलब क्या है? इट मींस ओनली वन डोर इज ओपन, ओनली वन. अगर द डोर है, इसका मतलब है कि हाउस में, होम में सिर्फ एक डोर ओपन है. It means other doors are closed. It means only one door is open. Suppose in our homes, in houses, what happens? We have different doors. बहुत सारे दरवाजे होते हैं. Yes, अगर बात करें, it means could you close the door? Question mark, request है in a question mark. So इसका मतलब होता है कि only one door is open. सिर्फ एक डोर ओपन है, बाकी सारे डोर क्लोज हैं. यहीं पे अगर हम यूज करते, yes, could you close our door? Our door means, it means other doors are open. Yes, और सिर्फ आपसे एक डोर क्लोज करने के लिए कहा गया है. और अगर डेफिनेट आर्टिकल है, could you close the door? Yes, that is a request. It means एक डोर ओपन है, yes, जिसको क्लोज करने के लिए कहा गया है. नेक्स्ट इज, दिस इज Anna's in the kitchen. अब इस सब का मीनिंग क्या है? इट मीन्स व्हाट हैपेंस, द किचन. अगेन वी हैव यूज्ड द डेफिनिट डिटरमिनर आर्टिकल हियर. It means only one kitchen, yes, is in the home. Only one kitchen. Sometimes we have more than one kitchens in a home. 2, 3, 4, 5, something else. But if Anna's in the kitchen, it means we know very well, the speaker listener knows very well कि in a home there is only one kitchen and Anna is in the kitchen. We know very well. Like, did you enjoy the party? Yes, did you enjoy the party? You know, the party, it means the party is specific, specialized. Use the definite article. It means the listener knows in which party we have done the enjoy, or we are doing the enjoy. I can't find the car papers. Yes, so we know car is countable noun, paper is also countable noun, and we use the is a definite article. Yes, because based on situation, it means once we mean, it means you know which or what I mean. That is, what's the time? Yes, and how much? Yes, so time again we know very well. Yes, that is a singular, yes, countable noun, because we can talk about 1, 2, 3 p.m. am something else, and that is a definite article to use it. It means there is only one. Yes, it means there is only one door is open, only one kitchen in the home. Yes,
there is only one party that we are doing the enjoy, and there is only one car paper. It means now what happens, papers, it is a plural. दैट इज के लिए यहाँ पे बिकॉज इनडेफिनिट आर्टिकल्स प्लूरल के साथ यूज नहीं होते, इसलिए हम द यूज करते हैं यहाँ पे। यस, क्योंकि ए एंड एन इनडेफिनिट आर्टिकल प्लूरल नाउन्स के साथ यूज नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंस कम हियर, नेक्स्ट इज द ओनली वंस अराउंड। यस, इसका मतलब क्या हो गया कि वी हैव यूज्ड द डेफिनिट आर्टिकल with the nouns, we do not have any choice or substitution. It means ऐसे nouns जिनकी जगह पे कोई और दूसरा नाउन सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके लिए हमारे पास कोई चॉइस है। सो उन सारे नाउन्स के साथ वी यूज ऑलवेज डेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट डिटरमिनर। यस, जैसे कि यह लिखा है देयर इज नो चॉइस, देयर इज ओनली वन। ये एक ही है चॉइस, जहां चॉइस नहीं, इसका मतलब ओनली वन इज देयर। The choice होती is more than one alternative option is there. Suppose if it talks about like the sun, the moon, the earth, the world, the universe, the future, the government, etc. So it means there is no alternative option. You know, moon is only one, earth is only one, sun is only one. Yes, yes, world is only one, earth is only one. So it means जहां ये चीज कंफर्म हो जाए कि इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव चॉइस और ऑप्शन टू यूज एट द प्लेस ऑफ दिस नाउन, तो उसके साथ ऑलवेज हम क्या यूज करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल उसके साथ यूज जहां पे हमारे पास एक चॉइस होती है। यस, वी कैन सब्स्टिट्यूट इट। सपोज इफ आई से आई हैव, सपोज एग्जांपल है आई नीड अ बुक। Yes, I need a book. I have need of a book. So यहाँ पे book जो है ये क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने आ आर्टिकल यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि we have so many books, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, चॉइस कर सकते हैं, we can choose the book yes out of many. तो यहाँ पे तो चॉइस है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, zoology, बॉटनी, इंग्लिश, वो सारी बुक्स हो सकती हैं। लेकिन ऐसे नाउन्स जिनकी जगह पे कोई चॉइस ही नहीं है, तो उनके साथ हम कभी भी इनडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, वी ऑलवेज यूज डेफिनिट आर्टिकल। यस, जैसे एग्जांपल क्या है, आई हैवंट सीन द सन फॉर डेज। अब सन जो है, यस, देयर इज ओनली वन सन। अब दो या दो से ज्यादा सन तो हमारे पास है जिसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इट मींस व्हेनेवर वी हैव यूज्ड द नाउन्स yes which are just once occurs, there is no option for them, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑलवेज डेफिनिट आर्टिकल। इसी तरीके से do you trust the government, so it means government means there is a one particular word, there is no alternative choice, कोई ऐसा दूसरा वर्ड हमारे पास नहीं है कि गवर्नमेंट की जगह हम उसको यूज कर लें, इसलिए इसके साथ यूज करते हैं डेफिनिट आर्टिकल। पीपल यूज टू थिंक द अर्थ वाज फ्लैट। अब यहाँ पे बात करें, अर्थ मींस ओनली वन इज देयर। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास एक से ज्यादा अर्थ हैं जो हम इसको जगह पे कोई दूसरा वर्ड यूज करें, इसीलिए यहाँ पे हमने यूज किया है डेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट इज गो स्ट्रेट ओवर टू सेट्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स एंड देन टर्न राइट आफ्टर द सुपरमार्केट। अब ये सुपरमार्केट है, यस, सुपरमार्केट, यू नो वेरी वेल व्हाट इज इट। यस, वी परचेस so many things from the supermarket, edible things and some domestic items. So what happens, supermarket, you know very well, there's a particular market. Yes, we can't substitute the supermarket with any other word. हमारे पास supermarket के लिए कोई दूसरा word available नहीं है जो हम इसके जगह use करें। ये it is a unique word, that's why we use the definite article here. So it is very understood, very clear. ऐसे words जिनकी जगह पे हम कोई दूसरा words use नहीं कर सकते हैं, it means वो unique words हैं, तो उनके साथ ऑलवेज हम डेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस रिगार्डिंग टू यूज डेफिनिट डिटरमिनर आर्टिकल। सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, इट मींस that is definite determiner article used with the superlatives. So you know superlative is a degree of an adjective, like एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जो हाईएस्ट डिग्री है एडजेक्टिव्स की वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री इज देयर। इट मींस कि इससे ऊपर और कुछ नहीं है।
that is superlative. It is super. Yes. So keep it mind, whenever we use adjective in superlative degree, always use definite determiner or article. जब कभी भी हम superlative adjective use करें in any sentence, any clause, so with the noun phrases and adjectives always use definite article. तो हमेशा कौन से आर्टिकल यूज करना है? डेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट डिटर्मिनर. वी डू नॉट यूज इनडेफिनिट आर्टिकल और डिटर्मिनर लाइक ए और एन विथ सुपरलेटिव्स. सुपरलेटिव्स के साथ कभी भी इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए या एन यूज नहीं होती हैं. जैसे कि एग्जांपल क्या है? आई एम द ओल्डेस्ट इन माय फैमिली. तो ओल्डेस्ट मीन्स ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. ओल्ड पॉजिटिव है, ओल्डर कंपैरेटिव है, ओल्डेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है. तो इसका मतलब ओल्डेस्ट के ऊपर और कोई वर्ड नहीं है, बिकॉज इट इज सुपर इटसेल्फ. सो इसीलिए इसके साथ कौन सी आर्टिकल यूज की गई? डेफिनेट आर्टिकल, और यू कैन से डेफिनेट डिटरमिनर जो द है. यस, और यू कैन से दी ओल्डेस्ट. क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि अगर नाउन का फर्स्ट साउंड जो है वोविल का हो तो दा हो जाता है दी, और फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट की हो तो दा ही रहता है. यस. सो देख सकते हैं ओ, द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड ओल्डेस्ट इज ओ इज वोविल, इसलिए अब इसको दी पर आ जाएगा. आई एम दी ओल्डेस्ट इन माई फैमिली. तो ये सुपरलेटिव वर्ड है ओल्डेस्ट, इसीलिए इसके साथ हमने यूज किया है डेफिनिट डिटर्मिनर या आर्टिकल. नेक्स्ट इज वी वेंट टू द सेम स्कूल. Yes, the same again, it means it comes to the adjectival form, and same is school. School is a noun, same is adjective, and same is itself in superlative degree. Yes, we can't say samer or samest, no. We can't say more same and most same, no, because same जो है itself in superlative degree में है. इसीलिए हमने इसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज किया है? that is definite article or definite determiner. Next is, can I have the next? Yes, next pancake. So pancake, it is a noun, और इसके साथ जो next यूज किया है that is adjective, और किस फॉर्म में, किस डिग्री में है? Superlative degree. Next is again itself a superlative word regarding to the adjective. इसीलिए इसके साथ हमने जो है डेफिनेट आर्टिकल को यूज किया है. हम नहीं कह सकते are next and next, no. The used always with superlative words, degrees of adjectives. Today is the coldest weather. अब coldest क्या है? It's again a superlative word of adjective. तो इसीलिए इसके साथ हमने ये कौन सा आर्टिकल यूज किया है? demonstrative article. So it is clear, I hope you understood, कि जहां भी हम superlative degree यूज करें of an adjective word, तो उस एडजेक्टिव के साथ हमें ऑलवेज यूज करना है डेफिनिट डिटरमिनर और आर्टिकल. नेक्स्ट कह रहा है द मीनिंग द वेल नोन. यस, इसका मतलब क्या है? डिस्कस कर चुके हैं. वेल नोन अगर मीनिंग हो किसी चीज की तो व्हाट हैपेंस आफ्टर द नेम. यस, द इज ऑफन यूज्ड टू मेक इट क्लियर दैट द पर्सन रेफर्ड टू इज द वेल नोन. अगर इट मींस कोई लिसनर किसी स्पीकर को या किसी पर्सन को अच्छे से जानता है, वेल नोन है. यस, एंड ही और शी आल्सो नोस कि जिसको अच्छे से जानता है उसका प्रोफेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है. तो उसके प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के साथ ऑलवेज का यूज होता है यस डेफिनेट आर्टिकल. वैसे हमने डिस्कस किया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. जैसे एग्जांपल था शी इज अ डेंटिस्ट. तो डेंटिस्ट जो है यस दैट इज अ प्रोफेशन, लेकिन उस सेंटेंस में किसी का नेम नहीं दिया गया है. यस, अगर यहां देखा जाए शी इज अ डेंटिस्ट, तो देयर इज नॉट नेम ऑफ एनी पर्सन, या नेम नहीं है, शी है, प्रोनाउन है. यहां डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है कि शी जो है वो कौन है, किसी का नेम नहीं है. यस, मैरी इज अ डेंटिस्ट, जॉन इज डेंटिस्ट, या ऐसा कुछ नहीं बताया गया. शी इज अ डेंटिस्ट. तो इसीलिए जहां पे इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि जिस सेंटेंस में देयर इज नो क्लियर, किसी पर्सन का नेम नहीं है, देयर इज ओनली यूज द प्रोनाउन, और प्रोनाउन यूज द प्लेस ऑफ नाउन्स. तो इसमें क्लियर नहीं कि शी जो है वो कौन है. जहां पे इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं, तो इसीलिए हम उसके ऑक्यूपेशन प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं इंडेफिनिट
आर्टिकल, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में उस पर्सन का नेम भी है और उसका प्रोफेशन भी है तो उस केस में हम यूज करेंगे डेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट डिटरमिनर। कैसे, देखिए क्या कह रहा है, शी मैरिड विलियम, विलियम जॉन्स। अब देखिए पर्सन का नेम दे दिया गया विलियम जॉन्स, शी मैरिड टू विलियम जॉन्स और विलियम जॉन्स, ठीक है। अब इसीलिए यहां पे हमने इसका विलियम जॉन्स का प्रोफेशन क्या है, एक्टर है, तो इसलिए अब एक्टर के साथ हमने यूज किया है डेफिनिट आर्टिकल, कीप इट माइंड। अगर यहां नेम नहीं होता, अगर होता शी मैरिड द एक्टर, यस, तो ये सेंटेंस गलत था। अगर नेम नहीं होता तो शी मैरिड एन एक्टर, शी मैरिड टू एन एक्टर, तब हम यूज करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन अगर नेम दे दिया गया है, और नेम इसलिए दिया गया बिकॉज द लिसनर नोज वेरी वेल हु इज विलियम जोन्स एंड व्हाट इज हिज प्रोफेशन, यस। इसीलिए नेक्स्ट में क्या, आई वुड लाइक टू मीट केथी पार्कर, केथी पार्कर इज द नेम ऑफ अ पर्सन, और आई वुड लाइक टू मीट, वो क्यों मिलना चाहता है, क्योंकि वो केथी पार्कर को जानता है कि उसका प्रोफेशन क्या है, इसीलिए हमने उसके प्रोफेशन के साथ यूज किया डेफिनिट आर्टिकल। देखिए वो नोवेलिस्ट है, केथी पार्कर क्या है, एक नोवेलिस्ट है, इसलिए नोवेलिस्ट जो उसका प्रोफेशन के साथ हमने जो आर्टिकल यूज की है वो डेफिनिट आर्टिकल को यूज किया गया है। नेक्स्ट इज ही टॉक्ड टू अब्राहम, अब्राहम से बात की, ही नोज हु इज अब्राहम, और यह भी जानता है कि अब्राहम का प्रोफेशन क्या है। जैसे अब्राहम का क्या प्रोफेशन, वो एक लॉयर है, यस, अब लॉयर है, यस। अब हमने यहां यूज किया आ लॉयर। अब इन केस में क्या, अगर आपने इनडेफिनिट आर्टिकल यूज किया तो ये सेंटेंस क्या आपका रॉन्ग है। अगर इसको करेक्ट करना है तो क्या करना है आपको, आ की जगह यूज करना है द, यस। ही टॉक टू अब्राहम द लॉयर, यस, नेम प्लस हिज प्रोफेशन, नेम के साथ अगर प्रोफेशन है तो ऑलवेज यूज होगी डेफिनिट आर्टिकल। नेम नहीं है और सिर्फ प्रोफेशन है, यस, तो वहां पे यूज होगा इंडेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट फिर क्या क्या, प्रॉपर नाउंस, यस, प्रॉपर नाउंस मींस नेम्स। अगर हम सेंटेंस में प्रॉपर नाउंस यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सिंगुलर प्रॉपर नाउंस, सिंगुलर प्रॉपर नाउंस, नेम्स ऑफ पीपल, यस, लाइक जॉन, विलियम, अहमद, मैरी, यस, सीता, यस, एक्सेट्रा। सो इट मीन्स डू नॉट यूज डेफिनिट आर्टिकल। इस प्रॉपर नाउंस के साथ कह सकते हैं, सिंगुलर प्रॉपर नाउंस के साथ कभी भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, इवन दैट इज डेफिनिट आर्टिकल हो या इनडेफिनिट आर्टिकल हो या कह सकते हैं डिटरमिनर हो। अगर हमने कहा मैरी लिव्स इन स्विट्जरलैंड, तो इसमें दो प्रॉपर नाउंस हैं, एक तो मैरी है और एक क्या है, स्विट्जरलैंड है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, मैरी लिव्स इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये है सिंगुलर प्रॉपर नाउंस, मैरी भी सिंगुलर है, स्विट्जरलैंड भी सिंगुलर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, दोनों नाउन है, इट इज करेक्ट। अगर मैंने यूज किया द मैरी लिव्स इन द स्विट्जरलैंड, द मैरी लिव्स इन द स्विट्जरलैंड। अब व्हाट हैपेंस, रूल कहता है कि डू नॉट यूज आर्टिकल्स विथ सिंगुलर प्रॉपर नाउंस, तो इन केस हमने यूज किया यहाँ पे द आर्टिकल हमने स्विट्जरलैंड के साथ यूज किया और द आर्टिकल हम यूज किया मैरी के साथ, जबकि जो रूल के अगेंस्ट है, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। यस, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हेन वी यूज डेफिनिट आर्टिकल्स, तो वी डिस्कस्ड हियर, यस। सो इसमें डिस्कस हमने किया कि डेफिनिट आर्टिकल जो है किसके साथ, सुपरलेटिव डिग्री हो अगर एडजेक्टिव की तो डेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं, या मीनिंग वेल नोन है, इट मींस देयर इज अ नेम ऑफ अ पर्सन एंड हिज प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन है, तब भी हम उसमें यूज करेंगे डेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट इज डेफिनिट आर्टिकल डू नॉट यूज विथ सिंगुलर प्रॉपर नाउंस, किसी का नेम है, नेम ऑफ प्लेस हो या नेम ऑफ थिंग्स हो, तो उसके साथ हम डेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ओके, सम now come to the next point regarding to the determiner, that is definite determiner. Yes, that is the last point relevant to the definite article or definite determiner. क्या है वो, pronunciation, that is very important. Yes, pronunciation, because I discussed with you all the, sometime it is the, sometime it is the, इसकी pronunciation change हो रही है, but pronunciation change based on the sound of the letter but not spelling. जो
THE की जो प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी, कभी दा हो जाता है, कभी दी होता है, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। इट मीन साउंड ऑफ द इनिशियल लेटर ऑफ अ नाउन एंड एडजेक्टिव। लेकिन स्पेलिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है कि स्पेलिंग को देख के ही उसको प्रोनाउंस किया जाए। इट मीन्स THE is a normally pronounced किस दी, ये जो सिंबल दा है जिससे मैंने आपको बता चुका हूं व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स, तो इसमें ये सिंबल मैंने बताया था आपको कि ये दा है। यस, तो दी बिफोर अ वोवेल। यस, कहने का मतलब अगर हम THE जो है दी पढ़ रहे हैं, वी आर प्रोनाउंसिंग दी, इट मींस इट अकर्स बिफोर अ वोवेल साउंड इन ऑफ अ नाउन और एडजेक्टिव। और दा कब पढ़ते हैं? THE दा, दा इट मींस बिफोर अ कॉन्सोनेंट। यस, दा जो है कॉन्सोनेंट से पहले प्रोनाउंस होता है और दी जो है वोवेल से पहले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन नॉट स्पेलिंग। यस, जो दा की प्रोनाउंसिएशन दी होती है वो किस पे डिपेंड है? प्रोनाउंसिएशन पे, नॉट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। स्पेलिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे आप प्रोनाउंस कर रहे हैं किसी नाउन को, अगर पहला लेटर वोवेल साउंड निकल रहा है, जैसे एलिफेंट है, तो एलिफेंट का फर्स्ट लेटर जो है ए इज अ वोवेल, तो इसीलिए उसमें जो आर्टिकल हम यूज करेंगे दा, वो दी पढ़ा जाए, दी एलिफेंट। यस, सपोज वी हैव द वर्ड डॉक्टर, यस डॉक्टर्स। अब डॉक्टर का फर्स्ट लेटर जो है डा है, दैट इज कॉन्सोनेंट, इसीलिए इसके साथ द डॉक्टर पढ़ते हैं, दी नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सपोज वी हैव हियर, यस THE है यहाँ पे, फिर आई से ICE। अब आइस में देखिए पहला लेटर जो इसका क्या है? वोवेल आई है, लेकिन हमें इसकी स्पेलिंग पे नहीं जाना, हम इसको पहले प्रोनाउंस करेंगे कि आइस में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस हो रहा है या वोवेल प्रोनाउंस हो रहा है। अब देखिए आई, अब आई क्या है? वोवेल है, तो इसीलिए जब ये वोवेल है फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड आइस, तब इसको पढ़ेंगे दी आइस, नॉट दा नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे दी आइस। नेक्स्ट इज, अब देखिए स्नो है, SNOW स्नो। अब स्नो का पहला लेटर क्या है? एस, और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? सा, और सा क्या? कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए आप इसको दा पढ़ेंगे, THE को दा, अब इसको दी नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल से हमारे पास यूनिवर्सिटी। अब देखिए स्पेलिंग पे क्यों नहीं है, दैट इज वेरी वेल अंडरस्टूड। अब यूनिवर्सिटी का पहला लेटर दिखने में तो वोवेल है, यू वोवेल है लेटर, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करोगे ये हो जाएगा यूनिवर्सिटी। तब यूनी मतलब ये या है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। ये देखिए हिंदी में यह इस तरीके से होता है, ये अब प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट, लेकिन दिखने में क्या है? वोवेल है, यू। अगर कोई स्पेलिंग पे जाएगा तब तो दा को दी पढ़ देगा क्योंकि वोवेल है, लेकिन हमें स्पेलिंग पे नहीं जाना, हमें जाना है इसके प्रोनाउंसिएशन पे। अब जब यूनिवर्सिटी पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी, यूनियन, तो या साउंड है, या इज अ कॉन्सोनेंट, इसीलिए इसके साथ इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? दा है। द यूनिवर्सिटी, द यूनियन, द यूनिवर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? अब देखिए यहाँ पे क्या, HONOUR। अब अगर स्पेलिंग पे जाओगे इसके, तो फर्स्ट लेटर क्या है? H है, और H इज अ कॉन्सोनेंट। यस, लेकिन वी नो वेरी वेल H जो यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है वोवेल से, ऑनर, ओ। अब ये वोवेल है, फर्स्ट लेटर की जो साउंड है वो वोवेल है, तब इसको पढ़ेंगे दी ऑनर। ठीक है, नेक्स्ट, अब MP है। अब देखिए वेरी वेल, अब MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब यहाँ पे M पढ़ेंगे, MP एब्रीविएशन। अब देखिए दिखने में तो कॉन्सोनेंट है M, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करेंगे एम, ए आता है पहले, एम में ए वोवेल है, तो इसीलिए इसको पढ़ेंगे दी एमपी, क्योंकि एम में पहले वोवेल आ रहा है, एम में। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखिए 1 पाउंड कॉइन। अब व्हाट इज देयर? अब 1 जो है ONE, अब पहला जो लेटर है वो तो दिखने में वोवेल है, लेकिन इसको प्रोनाउंस करेंगे वन है, वन, तो प्रोनाउंसिएशन वन है। देखिए इस तरीके से वन, इसको ऐसे लिखते हैं वन। यस, प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट है, लेकिन दिखने में क्या है? वोवेल है, लेकिन हमें इसकी स्पेलिंग पे नहीं जाना है,
we must have to concern about the pronunciation of the first letter of a noun. अब ये जब कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है वन वन, तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे द 1 pound coin. So I hope you understood how to identify the pronunciation of the, sometime the, sometime the. It is based on the pronunciation of the first initial letter of the nouns. So I stop here. So ये इतना जो है ये दा के बारे में हमने डिस्कस किया आपसे, जो है डेफिनेट आर्टिकल या डेफिनेट डिटरमिनेंट कर सकते हैं. So if you have any doubt, please tell me in the comment box. In the next video इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल. हम उसमें यूज करेंगे ए और एन, इसकी बात करेंगे. अभी हमने डेफिनिट खत्म कर दिया, अब हम बात करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन की, कि ये कहां-कहां यूज होते हैं और कहां का यूज नहीं होते हैं. सो आई स्टॉप हियर. सो प्लीज वॉच वीडियो, share it with your friends, colleagues, and like it, and subscribe my channel. Thank you so much.